Hello students, we have completed till this speech of Antonio where he says that Celerino and Selenio they also are respected by him. मतलब एंटोनियो का बोलना ये है कि सेलेरिनो और सेलेनियो को भी वो बहुत रिगार्ड देता है. But actually these two people they must be having their own work and that is why they are taking advantage of this opportunity and they are leaving. Just then Bassanio, Lorenzo and Graciano they enter and you all know that Bassanio is the closest friend of Antonio. तो जैसे ही Bassanio, Lorenzo, Graciano की एंट्री होती है all these people they wish each other good morrow my lords, good signors both, when shall we laugh, say when you grow exceeding strange must it be so. तो Bassanio बोलता है कि good morning both of you. किसको किसको signors बोल रहा है? सेलेरिनो और सेलेनियो को. और बोल रहा है कि when will we get free time to enjoy or when shall we have a merry meeting and enjoy ourselves. You grow exceeding strange का मतलब we have become strangers because we are not meeting very often. Celerino बोलता है we will make our leisure to attend on yours. So whenever we will get our free time we will definitely meet each other. तभी सेलेरिनो और सेलेनियो की एग्जिट हो जाती है जो कि वो पहले ही से एंटोनियो को इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं. एंड देन लोरेंजो सामने आता है. लोरेंजो इज अ कंपेनियन ऑफ बेसानियो. माय लॉर्ड बेसानियो सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो वी टू विल लीव यू. लोरेंजो को भी लगता है कि व्हेन बेसानियो हैज कम टू मीट एंटोनियो तो डेफिनेटली दीज टू बेस्ट फ्रेंड्स शुड बी अलाउड टू टॉक इन प्राइवेट एंड वी शुड ऑल्सो लीव. तो यहाँ पे वी वो अकेले अपने लिए नहीं बोल रहा है, ग्रेशियानो को भी इंक्लूड कर रहा है. बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वी मस्ट मीट देयर. लेकिन अब इनका एक पहले से एक प्रोग्राम है, प्लानिंग है, जिसमें लोरेंजो बोलता है कि एट डिनर टाइम दे विल मीट इन द इवनिंग. आई विल नॉट फेल यू. फेल मीन्स डिसअपॉइंट. बेसानियो बोलता है कि आई विल डेफिनेटली नॉट डिसअपॉइंट यू. ग्रेशियानो यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो. Graciano also notices that Antonio is looking exceedingly sad and sorrowful. तो बोलता है कि you are not looking very well today. You have too much respect upon the world. और उसका रीज़न क्या देता है कि you have attached too much value to the opinion of the world. मतलब you have got too much feelings for the world. They lose it that they do buy it with much care. Believe me, you are marvelously changed. आगे क्या बोल रहा है कि people who have too much opinion about the world, they do not care about themselves. जो लोग दूसरों की ज़्यादा केयर करते हैं वो अपने बारे में नहीं उतनी केयर करते. And believe me when I say you are marvelously changed का मतलब wonderfully changed. So that is why your behavior appears to be changed. To which Antonio replies, I hold the world but as the world Graciano. एंटोनियो ने बोला कि आई गिव वैल्यू टू द वर्ल्ड द वे इट शुड बी गिवन. मैं वर्ल्ड को या अपने सराउंडिंग्स को उतनी ही वैल्यू देता हूँ जितनी की देनी चाहिए. ठीक है. और आगे बोल रहा है कि अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन. बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है जिसमें वो बोल रहा है कि आई कंसिडर दिस होल वर्ल्ड एज अ स्टेज वेयर एवरी पर्सन हैज हिज और हर रोल टू प्ले. ये दुनिया एक स्टेज है और यहाँ पे हर एक ह्यूमन बीइंग को एक कैरेक्टर गॉड ने दिया है और मेरे हिसाब से मेरा कैरेक्टर सैड है. ग्रेशियानो कि ये स्पीच बहुत ही लेंदी है, आप आगे देखेंगे और इस पे आप बहुत ध्यान दीजिए और एक्सपेक्टेड भी रहती है ये स्पीच. ये आप यस नाउ इट इज कवर्ड. तो ग्रेशियानो बोलता है लेट मी प्ले द फूल. इफ दिस होल वर्ल्ड इज a stage and you are playing a role of a sad one, I want to play the character of a fool. Fool is referred to not to foolish person but to clown, jester. With mirth and laughter let old wrinkles come. वो बोल रहा है कि I want to enter into my old age only enjoying life. ठीक है. I want to be happy, I want to laugh and then I can easily enter the old age. And let my liver rather heat with wine than my heat cool with mortifying groans. I do not want my liver to be depressed with sadness and sorrows.
I want my liver to become hot or to become injured only by the enjoyment of taking wine. तो वो बोल रहा है mortifying का मतलब dying और groans means heavy sigh, कि मैं old age में enter करना चाहता हूँ but laughing happily. And then he also says कि I want my liver to be infected but not with sadness, not with sorrowful, not with tensions or worries. I just want my old age or my liver to get infected by consuming wine, that is by enjoying life. ये स्पीच ग्रेशियानो की बहुत बड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट है. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster? उसने बोला कि when a man is young, when his blood is warm, when he is in youth, तो why he should behave like the statue of the grandfather, which is made out of white stone. So alabaster is white stone and grandsire is statue of grandfather. So why should a man behave like a statue of an old man which is made out of this white stone? Sleep when he wakes. And why should we behave like a sleepy fellow when we have to enjoy an active life? So during our youth, we should be very active towards our life instead of becoming sad. And creep into jaundice by being peevish. Peevish का मतलब होता है ill tempered. तो why we should remain, why we should suffer with serious illness like jaundice by remaining ill tempered. जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन्स और वरीज में रहते हैं तो फाइनली आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी कैच कर लेती है. तो यहाँ पे जॉन्डिस का रेफरेंस सिर्फ इसलिए दिया गया है कि वी सफ़र विथ सीरियस इलनेसेस इफ़ वी डू नॉट एंजॉय लाइफ, इफ़ वी आर फुल ऑफ टेंशन एंड इफ़ वी हैव टू मच ऑफ वरीज इन अवर लाइफ. तो उसी को बोल रहा है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू सफ़र विद एनी सीरियस इलनेस बाय जस्ट बिहेविंग in an ill-tempered manner. I tell thee what, Antonio, I love thee and it is my love that speaks. इतना लेक्चर देने के बाद एंटोनियो को बोल रहा है कि एंटोनियो, जस्ट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड दैट इज वाई आई एम गिविंग दिस सजेशन टू यू. देयर आर सॉर्ट ऑफ मेन whose visages means faces, do cream and mantle like a standing pond. अब एग्जाम्पल दे रहा है वेराइटी ऑफ मेन के जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है. क्या बोल रहा है कि ऑन दिस अर्थ देर इज वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल. देर आर सच कैटेगरी ऑफ पीपल हुज फेसेस दे आर जस्ट लाइक द स्टैंडिंग पॉन्ड. स्टैंडिंग का मतलब स्टिल, स्टेबल, विदाउट एनी मूवमेंट. स्टैंडिंग पॉन्ड which has a cream and mantle. Cream and mantle का मतलब which forms a thin cover over your face. तो ये सिमिली यूज हुआ है. एक सीरियस आदमी के फेस को स्टैंडिंग स्टिल साइलेंट किससे कंपेयर किया गया है? पॉन्ड से. एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन because he wants to maintain silence on his face with a purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity and profound conceit, because he just want to convey to other people that he is very intelligent. His gravity means serious and he has got great thoughtfulness. सिर्फ ये कन्वे करने के लिए दूसरे लोगों को कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, सीरियस है, वाइज है, प्रोफाउंड थॉट्स हैं उसके माइंड में, इसीलिए वो ऐसे एक्सप्रेशंस को लेकर के चलते हैं. यानी कि पीपल हु कवर देयर फेसेस विद एक्सप्रेशंस ऑफ सैडनेस और सोबरनेस इज जस्ट दैट दे वांट टू प्रिटेंड दैट दे आर वेरी वाइज. एज हु शुड से आई एम सर ओरेकल एंड व्हेन आई ओप माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क. ऐसे लोग की जो आइडेंटिटी होती है वो सर ओरेकल की तरह होती है. सर ओरेकल इज एन आइडेंटिटी ऑफ विजडम. जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिफर्ड बाय सर ओरेकल तो आप आंसर लिखेंगे आइडेंटिटी ऑफ विजडम. So he says that these people, they pretend to be sad because they want to pose as if they are very intelligent. They want to portray that they are identity of wisdom, and they also have this expression on their face that whenever they speak, the other people should keep quiet. Let no dog bark का मतलब they consider all the people as dogs. जो speakers होते हैं, people who are in habit of enjoying life or speaking a lot, so they are considered as dog. So they do not want any stupid to speak or interfere. O my Antonio, I do know of these that therefore only are reputed wise for saying nothing. वो बोल रहा है Antonio, these people they remain sad because they just want to
give a reputation of being wise. ठीक है, if they will not speak anything, they will be considered as intelligent people, which is wrong. When I am very sure if they should speak, would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fool. And definitely such people who consider or who act to remain sad in order to portray, intelligence, so these people, they will be damned after they die, because they consider it is a sin to consider other people as foolish. And I know that if they will speak, the people who will be hearing their foolish talks, foolish lectures, they will be sent to hell. ठीक है, तो ऐसे लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंट पोज करने के लिए बात नहीं करते हैं, सीरियस रहते हैं और दूसरों को ये बताते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, और जब वो बोले तो कोई ना बोले, तो ऐसे लोगों को तो गॉड पनिश करेगा. आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम. मैं आपसे इसी टॉपिक पे फिर बात करूंगा. बट फिश नॉट विद दिस मेलनकली बेट फॉर दिस फूल गंडियन. गंडियन एक स्मॉल फिश होती है, और यहाँ पे मेटाफर है फुलिश प्रेज के लिए. ठीक है, तो जस्ट इन ऑर्डर टू गेट प्रेज फ्रॉम द वर्ल्ड, डू नॉट रिमेन सैड. और बेट जो है वो इन्होंने मेलनकली को बेट बोला है. ठीक है, सैडनेस को बेट का मतलब होता है चारा. तो सैडनेस को आप चारा बना करके गंडियन स्मॉल फिश को पकड़ने का काम मत करें. यानी कि लोगों की अटेंशन सैड रह करके आप मत लें, बिकॉज दिस इज अ फुलिश थिंग टू डू. Come on, good Lorenzo, fare ye well a while. I'll end my exhortation. Exhortation का मतलब lengthy talk या फिर lecture. ठीक है, तो उसने बोला कि लोरेंजो नाउ वी शुड गो, गुड बाय सबको बोलता है. फिर बोलता है कि आई विल कंप्लीट माई लेक्चर आफ्टर डिनर, बिकॉज इट हैज बिन डिसाइडेड बाय दीज थ्री फ्रेंड्स, लोरेंजो, बेसानियो एंड ग्रेशियानो, दैट दे विल मीट एट डिनर टाइम. Well, we will leave you then till dinner time. I must be off. One these same dumb wise men, for Graciano never lets me speak. तो लोरेंजो ने जब ग्रेशियानो को इतना बड़ा लेक्चर सुना, तो उसने बोला कि I should also I am also in habit of remaining silent when Graciano is with me, because Graciano never allows me to speak. तो ये एक तरह का सेटायर है, टॉन्ट है. लोरेंजो ने देखा कि ग्रेशियानो ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया एंटोनियो को साइलेंट रहने पे, सैड रहने पे. तो लोरेंजो ने बोला कि मैं भी तो इनके सामने डम्ब ही रहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बोलना ही नहीं देते. वेल कीप मी कंपनी बट 2 years मोर, दाउ शैल नॉट नो द साउंड ऑफ दाई ओन टंग. ग्रेशियानो ने बोला कि इफ यू विल बी इन माई कंपनी, लोरेंजो से बोल रहा है, इफ यू विल बी इन माई कंपनी, इफ यू विल बी माई फ्रेंड फॉर 2 more years, यू विल फॉरगेट द साउंड ऑफ योर ओन टंग. मतलब आई विल फोर्स यू टू रिमेन साइलेंट. तभी एंटोनियो भी उनको गुड बाय बोलता है और बोलता है आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर. गियर का मतलब ओकेजन. और एंटोनियो ने बोला कि जो आपने मुझे लेक्चर दिया है, तो आई विल डेफिनेटली टेक द हिंट एंड स्टार्ट स्पीकिंग नाउ. आई विल बिकम अ टॉकर. आई विल टेक एडवांटेज. आई विल टेक योर काउंसिल, एडवाइस. Thanks in faith, for silence is only commendable in a neat stunk dried and a maid not vendable. तो ग्रेशियानो ने बोला कि 2 ही केसेस में साइलेंस को प्रेज किया जाता है. वन विद सॉल्टेड ऑक्स टंग, एक तरह की डिश होती है, और वो रोस्टेड टंग होती है ऑक्स की, जिसको सॉल्ट के साथ बनाया जाता है. तो या तो वो साइलेंट अच्छी लगती है, यानी कि ऑक्स की टंग जब रोस्ट हो जाए वो साइलेंट अच्छी लगती है, और नहीं तो फिर वो मेड जो कि मैरिज के लिए मैट्रिमोनियल मार्केट में जिसको भेजा जाता है. ठीक है, सो द गर्ल हु इज अबाउट टू गेट मैरिड शुड रिमेन साइलेंट, एंड द ऑक्स टंग विच इज रोस्टेड, dried and salted, that should remain silent. Otherwise everybody should speak and enjoy life. ग्रेशियानो और लोरेंजो की एग्जिट हो जाती है. एंटोनियो, इज दैट एनीथिंग नाउ? अब एंटोनियो को हंसी आ जाती है ग्रेशियानो की इस एग्जाम्पल्स पे, और वो बोलता है कि व्हाट डज इज दिस मेक सेंस. ये एग्जाम्पल इन्होंने क्यों दिया और इससे क्या सेंस बनता है? बेसानियो, ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग. इनफाइनाइट का मतलब टू मच, नथिंग मीन्स नॉनसेंस. तो बेसानियो ने ग्रेशियानो की आदत बताई एंटोनियो को, बोला कि ही इज अ मैन who can speak nonsense for too much time, more than any man in all Venice. So he can speak nonsense
more than any person who's present in the city of Venice. His reasons are as 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff. और इनकी ढेर सारी बातों में सेंस या रीजन या मीनिंग उतना ही होता है जितना 2 बोरे भूसे में 2 दाना वीट का छुपा हुआ हो. शैफ मीन्स हस्क, बुशल्स मीन्स जैसे आप कह सकते हैं कि बोझ या बोरी, ठीक है, या बंडल. तो 2 बंडल भूसे में जितना 2 दाना वीट होता है उतना ही इनकी नॉनसेंस बात में रीजन होता है. You shall seek all day ere you find them, and when you have them, they are not worth the search. So you can spend the whole day in order to listen to him, and you will not find anything sensible in his lecture. Well, tell me now what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage. अब एंटोनियो यहाँ पे सीरियस कॉन्वर्सेशन पे आता है और टॉपिक चेंज करता है. बेसानियो से बोलता है कि प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट वुमन whom you have secretly visited. तो ये लेडी आपको पता है कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? पोर्शिया के बारे में. सीक्रेट पिलग्रिमेज का मतलब प्राइवेट विजिट. दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ. So tell me the name of the girl, the lady whom you intend to visit secretly, and you promised me that you will disclose this to me today. ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको रेडी करिएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे. ओके.